मन को प्यारो मन से हो कसरी बाँचौला यो जीवन काटौला जिउनुको प्यारो अर्थ हो So this mock was from textbook SBI clerk. The test number was first. So this mock was given by 31,000 people. Okay, that was a good amount of people. So the first section was English, and while I was doing English, I was pretty sure that this section will be okay. Okay, so I attempted 27 questions, out of which 3 were correct. Okay, out of which 3 were incorrect and rest were correct, and 3 I left unattempted. So while doing English section, I thought that the level of PO and the level of clerk, like I have given the PO mock also. If you haven't seen, you can watch the video. You can see here, it will be showing in I button. Okay, so the thing is ki you will get the same amount of time and same number of question, but the difference is the level of question, particularly for English. So in English, I have seen that the question for error detection, or whether it is of like RC, so it was pretty easy. Plus, what I have faced difficulties in PO, there are less question of direct synonym and antonyms, but in clerk there were like 3 to 4 question of synonym antonym. So there I struggled because obviously I don't know every word, so this is where I lagged. So there was one question I left of synonym also. I don't know, am I pronouncing it right or wrong? It's quagmire, the synonym of word quagmire. So I didn't know, so I didn't take any chance, so I left it unattempted. So the synonym was muddle. Muddle is basically when it is like confused or mix up, jumble, parasumble, ऐसा type का. बाकी I didn't face any time issue or anything like that in English. It was okay. Next section was quants, and if I talk about my experience of PO mock एंड क्लर्क वाले में, तो क्या था कि जब मैं PO का मॉक देती हूँ तो मेरे पास बहुत कम टाइम, लाइक आई गेट पैनिक टू ईजिली. एंड अगर मेरा एक सेक्शन बेकार गया या फिर कोई 1-2 क्वेश्चन में मैं अटक गई तो मेरा मूड वहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है, एंड आई फील लाइक कि मेरा पेपर ख़राब हो गया. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे पास जो बचा है मैं उतने में ठीक कर लूँ, आई स्टार्ट पैनिकिंग एंड बहुत स्ट्रेस होने लगता है. सो बट क्लर्क वाले में क्या था, बिकॉज another thing is ki in clerk the level of question is quite low, but obviously you need to speed up. Like the marks I have scored in this clerk mock, if I have scored in PO1, then my percentile would be much more than this one. I will tell you later. There were many questions in which I solved the question and I got the answer, but while marking the answer I saw that there is no option. I was like, क्या मतलब ऐसे इतने क्वेश्चन है, आई नो उसमें कोई सिली मिस्टेक हुई होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट गेटिंग द परफेक्ट आंसर. बट मेरे पास उस टाइम पे इतना टाइम था ही नहीं कि मैं उसमें अपनी सिली मिस्टेक ढूंढूं कि मैंने कहाँ की है. एंड फिर उस टाइम पे फिर मैं पैनिक करने लग जाती हूँ कि मेरा इतना सारा पेपर बचा हुआ है और मेरे टाइम जा रहा है और मेरे को उतने में ही करना है. सो इन क्वांट्स आई अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 2 वर इनकरेक्ट, 18 वर करेक्ट, 15 I unattempted. You won't believe I panicked that much कि उस टाइम पे मुझे इतना भी समझ नहीं आया था कि 12 7 का कितना होता है. आई लिटरली मल्टीप्लाई 12 7 इंटू 7 टू 14 ऐसे करके, बिकॉज सीरियसली द लेवल ऑफ पैनिक आई गेट, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज गेट और नॉट, बट मेरा वाला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. लिटरली देयर वाज टाइम कि मैंने मॉक बंद कर दिया है इवन बिफोर मेरा एक पूरा का पूरा सेक्शन बचा हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन और पैनिक में मैं पूरा का पूरा टेस्ट सबमिट कर देती हूँ कि नहीं कर रही मैं टेस्ट ऐसे. सो क्वांट्स का तो ये सीन था. मैंने DI अटैम्प्ट नहीं की हुई है क्योंकि टाइम ही नहीं बचा. मैं सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही कर रही थी जिसमें टाइम लग गया, एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी was quite easy, but the only thing is I need to work on my speed and वैसे प्रेशर झेलने की जो पावर होती है उस पर पता नहीं कब होगा.
अगला सेक्शन है रीजनिंग का। एंड यहाँ पे एक मेजर वो आता है, लाइक डिफरेंस आता है। व्हेन आई गेव पीओ मॉक, तो जो मेरे पीओ मॉक में जो मार्क्स को थोड़ा बहुत बैलेंस कर पाता था ना, वो रीजनिंग होता था। बट इस वाले टाइम पे आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने पहली पज़ल उठाई और वो पहली पूरी की पूरी पज़ल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो वाली पज़ल ऐसी थी कि 9 पर्सन थे एंड दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शॉप, एंड ऐसा था कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में था, लाइक W हैज़ मोर शॉप देन V, ऐसे करके। सो आई रोट डाउन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड दैट वन। वाइल सॉल्विंग द पज़ल आई लिटरली फॉरगेट कि मैंने वो जो 9, 8, 7, 6 लिखा है वो लिखा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शॉप्स, कि वो नंबर ऑफ शॉप्स को मेरे को 34, 32 ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आई शुड राइट द नंबर ऑफ शॉप्स लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके वजह से उस टाइमिंग पे मेरा 2 से 1.5-2 मिनट गया था, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं इतनी स्टक क्यों हो रही हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न कि मेरा पहला पज़ल ऐसे ही गया। फिर एक और पज़ल मैंने किया, वो पूरी की पूरी पज़ल मैंने सही बनाई है, मेरे पास अभी भी कॉपी में लिखी हुई है। मैंने जब चेक किया एवरीथिंग वाज राइट, जस्ट बिकॉज कि मैंने एस की जगह पे यू लिख रखा था, मेरा पूरा का पूरा पज़ल वो ऐसे गलत हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन किया एंड किस्मत से, बदकिस्मती से पहला क्वेश्चन वो US वाले पे ही पड़ गया, तो मेरा वो गलत हो गया। तो मुझे लगा मैंने पूरी पज़ल ही गलत बनाई है, तो मैंने आगे क्वेश्चन चेक ही नहीं किए। मे बी हो सकता है 1-2 मेरा उसमें से सही निकल आता, US की कंडीशन वाली छोड़ के, मतलब जिसमें मैंने यू की जगह एस की जगह यू लिख दिया था। इस तरह से मैंने काफ़ी किया है। अभी जब मैंने वो दोबारा किए, जब मैं दोबारा सॉल्व किए, मैंने वो एनालिसिस किया, तो आई गॉट टू नो कि वो सारे पज़ल बने हैं एंड दे वर क्वाइट लाइक डूएबल पज़ल थे, लाइक 2-3 मिनट में मैक्सिमम सारे बन जाते, बट क्या कर सकते हैं। सो इसमें मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे, 2 इनकरेक्ट थे और 21 अनअटेम्प्टेड थे। तो द कंक्लूज़न इज़ कि मेरी एक्यूरेसी ठीक है, ओके है, बट आई नीड टू वर्क ऑन स्पीड अ लॉट। सो ओके, बता देती हूँ कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा। सो I attempted total 61 question out of 100, and as I have told you the correct and incorrect question, I guess. So the score was 52.25 out of 100. The rank is 11391 out of 32,136 people. Okay. The rank is 11,391 out of 32,136 people. Percentile is 64.56 as expected, because the paper is of clerk, so I need to score more marks so that I can get more percentile. But if it would have been in PO, then the percentile would be, I guess, 75 or 80, I guess. So accuracy is 88.52%. So yeah. And if you have any question, then do comment me below, or you can message me on Telegram. You can join my Telegram channel, and you can join the Telegram group where you can talk with your fellow bank aspirant. I will promise in the next mock of SBI clerk I will be achieving more than this. Bas kam na hai. Okay. So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.